Yeah. Yes, ma'am. Okay, see here. Yesterday we had seen this is concurrent execution, this is serial execution. Serial execution means first of all it will complete the A transaction and then it will complete the B transaction. Means after completion of A transaction, it will start the B transaction. That is called a serial transaction. Okay, and this is concurrent. Concurrent means some part of A transaction gets executed, then some part of B, again some part of A and remaining part of B. This is called as concurrent execution. Okay, means simultaneously you can say. Now, the use of concurrent execution. There are two main advantages of concurrent execution. What are the advantages of concurrent execution? Okay, so um, improves throughput and resource utilization. See here, in computer input output and CPU activities, in computer input output and CPU activities go in parallel. Okay, input output means जो हम input और output देते हैं प्रोग्राम को, enter the number, okay, वो और output, या फिर input output means जब हम when we will read the data from the screen, from the database, when we will read the data from the database, and जब हम RAM से हार्ड डिस्क में डेटा राइट करते हैं, that is called as input output. Okay, and CPU activities go in parallel. CPU में क्या होता है, execution होता है, calculations होते हैं. Okay, so multiple transactions can be run in parallel. So one transaction may be doing input output operation, at the same time other transaction is running in the CPU. see here क्या होता है, अगर T1 और T2 दो ट्रांजैक्शंस है. ओके, अब T1 क्या कर रहा है, T1 को बीच में ही इनपुट आउटपुट चाहिए. T1 को क्या है, बीच में फिर से कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए. उसको या तो हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना है या तो हार्ड डिस्क में राइट करना है, इनपुट आउटपुट चाहिए. तो तब तक क्या रहेगा, सीपीयू आइडल रहेगा. सीपीयू आइडल रहेगा, आइडल मींस फ्री रहेगा, उसके पास अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि ये हार्ड डिस्क के साथ कुछ रीड राइट कर रहा है. तो तब तक क्या हो जाएगा, अदर ट्रांजैक्शन, तो सीपीयू आइडल रहेगा. सो एट द सेम टाइम अदर ट्रांजैक्शन रनिंग इन द सीपीयू में सीपीयू फ्री रहेगा, तो दूसरा ट्रांजैक्शन आके अपना सीपीयू का काम कर लेगा, कैलकुलेशंस कर लेगा. ओके, फिर जब इसका रीडिंग राइटिंग हो जाएगा हार्ड डिस्क से, तब ये सीपीयू यूज करेगा. तो ये जो दूसरा है वो उसको अगर रीड राइट कुछ करना है तो वो उसका काम करेगा. लाइक दैट मींस साइमल्टेनियसली सीपीयू और बिजी रहेगा. ओके, सो all this increase the throughput of the system. Now throughput means what? Throughput is the number of transactions executed in a given amount of time. Throughput is the number of transactions executed in a given amount of time. Means पहले क्या होता था, अगर सीरियल ट्रांजैक्शन हम कंसिडर करते हैं तो एक मिनट में हमारे 5 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं एक मिनट में. अगर सीरियल ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं यानी एक T1 कंप्लीट होने के बाद T2 स्टार्ट हो रहा है. बट अगर हम कंकरेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंकरेंट मींस यही कि एक ट्रांजैक्शन जब इनपुट आउटपुट ले रहा है, मींस हेड से कुछ काम कर रहा है, तब तक सीपीयू फ्री रहेगा, तो सीपीयू में दूसरा ट्रांजैक्शन सीपीयू को यूज करेगा. सो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा सीपीयू बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा, साइमल्टेनियसली यूज होगा. सो हो सकता है कंकरेंट ट्रांजैक्शन की वजह से एक मिनट में 7 से 8 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाए. मींस कंकरेंट की वजह से क्या होता है, ट्रांजैक्शन का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन उसका काउंट बढ़ जाता है. So throughput is the number of transactions executed in a given amount of time. Okay. So throughput it increases the throughput of the system. So concurrent की वजह से क्या होता है, throughput बढ़ता है. Means number of transactions जो execute होते थे उसका count बढ़ जाएगा. Okay. So ये definitions पूछी जाती है. Okay. And resource utilization. Resource में CPU. So resource utilization has also increased because the idle time is reduced. रिसोर्स में सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि वो खाली आइडल रहेगा ही नहीं, कोई ना कोई उसको इन बिटवीन यूज कर लेगा. सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी उसका बढ़ेगा. ओके, और तो जाहिर है आइडल टाइम जो है वो उसका रिड्यूस्ड होगा. सेकंड एडवांटेज है रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम. देयर इज अ मिक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रनिंग ऑन अ सिस्टम. अब ट्रांजैक्शन सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो सब सेम साइज के थोड़ा ना होते हैं, कुछ काफी बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं. Okay, so there is a mix of transactions running on a system. Some may be short transactions while other long transactions. If they run
ट्रांजैक्शन मीन्स वो जो हमने देखा था a equal to a plus 45, a equal to 45 like that. Okay, we will see now the what are the again transactions. Okay. If they run serially, they short transaction has to wait till long transaction finishes. अगर हम serial transaction के बारे में बात करें तो अगर पहला ही ट्रांजैक्शन बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा तो पहले सेकंड वाला जो छोटा है उसको काफी देर तक वेट करना पड़ेगा कि जब ये पहला लॉन्ग वाला कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ये सेकंड वाला स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन का जो छोटा है. ओके, बट इफ वी रन देम कंकरेंटली देन द वेटिंग टाइम ऑफ द शॉर्ट ट्रांजैक्शन इज रिड्यूस्ड. अगर हम उसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, T1 का जो लॉन्ग है उसका थोड़ा सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसको जब हार्ड डिस्क से रीड या राइट कुछ करना है तब तुरंत जाके T2 जो है उसको एग्जीक्यूशन का चांस मिल जाएगा तब तक सीपीयू में. ओके, मींस उसका जो वेटिंग टाइम था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा. Furthermore, it reduces the average response time. Average response time जो है वो भी उसका कम हो जाएगा. Now, what is average response time? It is the average response time of the transaction to be completed after it has been submitted. Submitted means execution के लिए submit होने के बाद complete होने को उसको जो time लगता है that is called as average response time. Okay, आप लाइन में खड़े हो बैंक के या कुछ तो लाइन में खड़े होने से हो गए आप मींस यू आर सबमिटेड फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वहां से लेके उस टाइम से लेके तो आपका जब काम कंप्लीट हो जाएगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज रिस्पांस टाइम. ओके, तो ठीक है, मींस ये क्या है, एडवांटेजेस है कि उसका थ्रूपुट बढ़ेगा, उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वेटिंग टाइम कम होगा और एवरेज रिस्पांस टाइम भी क्या होगा, कम ही होगा ना, यानी तुरंत उसको जल्दी जल्दी रिस्पांस मिलेगा ना उसको, तो वो भी कम होगा, मींस अच्छा है. Okay, now mainly today I have to focus on the transactions. Okay, calculations. See, schedule means schedule represents the chronological order in which instructions are executed in the system. Actually schedule means क्या है कि एक transaction है तो हम उसको transaction बोलते हैं, but if there is a combination of transactions 2 or 3 means more than one transactions then it is called as schedule in short. Okay, but we have to write down the definition in the technical words of course. Okay, टेक्निकल वर्ड्स हमको पता चाहिए. तो सिंगल है तो हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बट इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन देन इट इज कॉल्ड एज शेड्यूल. ओके, सो शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द क्रोनोलॉजिकल मींस टाइम वाइज, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आया वो बाद में होगा, लाइक दैट. नॉट एग्जैक्टली बट क्रोनोलॉजिकल मींस टाइम वाइज ऑर्डर इन व्हिच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सिस्टम. ओके, a schedule for a set of transaction must consist of all the instructions of those transactions. उस schedule में क्या रहेगा, transaction के instructions रहेंगे and must preserve the order in which they appear in individual transactions. Transaction के instructions जो है वो change नहीं होने चाहिए, वो वैसे ही रहेंगे. Okay? Now there are two types of schedules: serial schedule and concurrent schedule. Serial schedule means after completion of one transaction, other transaction will start the execution. That just we had seen. Serial means after completion of one transaction, other transaction will start the execution. And concurrent means the system will execute one transaction for some time and other transaction for some time and then again switch back to the first transaction. जो हमने ऊपर definition देखी थी. Okay, ये वाली. This is called as concurrent. Okay, so that is called as concurrent schedule. अब हमको ना 4 schedules देखने हैं, उसके calculations देखने हैं. So you have to concentrate here. Following are the examples of serial and concurrent schedule. This one is serial schedule which shows T1 followed by T2. Okay, ये हमको देखना है कैलकुलेशन के कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, that we have to check it out. Second है T2 followed by T1. ट्रांजैक्शन सेम है बट पहले T2 एग्जीक्यूट होता है बाद में T1 होता है. So these are the serial schedules. Okay. Then third one is concurrent schedule. अब ये concurrent schedule है, some part of T1, some part of T2, some part of T1, some part of T2. So whether it is correct or wrong, that we have to find it out. क्योंकि concurrent schedule है तो internally ये सब CPU में होता है, हमको दिखता नहीं है, but हमको पढ़ना है वो. Okay, so ये कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि यहीं पे ब्रेक हो, ये यहाँ ये कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है मींस इसके बाद. तो that we have to check it out whether it is correct or wrong. And fourth one is also given. That is, ये अब कहीं और ब्रेक हुआ है, देखो ब्रेकिंग पॉइंट इसका अलग है. So we have to check it out whether it is correct or wrong. Okay, so we have to, मैं ये कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार देखना है हमको. Okay, उसके बाद फिर आपको without calculations you have to tell that whether the given transaction is correct or wrong.
तो वो मेथड्स बताती हूँ मैं आपको, डोंट वरी, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर. See here, T1 and T2 two transactions are there. A serial schedule T1 followed by T2 means पहले T1, first of all T1 is getting executed and then T2, as it this is a serial because after completion of T1 T2 will start. इसके बाद इसका first instruction है, this T1 first gets executed and then T2. Now what is going on in the T1? In T1 we are transferring rupees 50 from account A to account B. In T1 we are transferring रुपीज 50 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी. सो क्या है इंस्ट्रक्शन, देखो ये इंस्ट्रक्शन सेम है चारों इंस्टेंस में, चारों शेड्यूल्स में इंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ अलग अलग ये किया है उन्होंने. सो से ये रीड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रीड द वैल्यू, रीड मींस इट विल रीड द वैल्यू फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, देन ए इक्वल टू ए माइनस 50 कैलकुलेशन करेगा एंड राइट है मींस हार्ड डिस्क में राइट करेगा, लिखेगा. ओके, देन रीड बी, अब बी की वैल्यू रीड करेगा, सेकंड ये अकाउंट नंबर है, बी में क्या होना चाहिए, 50 रुपीज प्लस होने जाने चाहिए, सो बी इक्वल टू बी प्लस 50, राइट बी. अब ये बी की वैल्यू भी हार्ड डिस्क में राइट करेगा, मैं सब ए से माइनस होगा और बी में प्लस होगा, जाहिर है बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग रुपीज 50 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी. ओके, तो ये T1 में ये रहेगा. T2 में क्या है, ए की वैल्यू रीड कर रहे, t इक्वल टू ए इंटू 0.1, सम परसेंटेज दे आर कैलकुलेटिंग कि ए का 0.1%, ओके 1% यू कैन से, और तो a इक्वल टू a माइनस टी, a में से फिर ये जो t है निकलता है परसेंट, वो हम माइनस कर रहे हैं एंड राइट है, उसको हार्ड डिस्क में राइट कर रहे हैं. रीड भी क्या कर रहा है, मींस ये जो t है वो a में से माइनस हो रहा है और b में प्लस हो रहा है, इन शॉर्ट अगेन. ओके, सो रीड b, b इक्वल टू b प्लस t, राइट b. दिस हो क्या रहा है, t निकालना है. ओके, t की वैल्यू निकालेंगे, रीड a करेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सम a इनटू 0.1% मींस वो जो t है वो a में से माइनस कर रहे हैं और b में प्लस कर रहे हैं. तो सेम इंस्ट्रक्शंस चारों इसमें है. ओके, सो अभी हम कैलकुलेशंस देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसी होती है. हियर आई हैव रिटन हियर, ये हार्ड डिस्क है, ये T1 है, T2 है. दिस इज द प्राइवेट एरिया ऑफ T1, दिस इज द प्राइवेट एरिया ऑफ T2. T1 का सेपरेट अपना एग्जीक्यूशन का प्राइवेट एरिया होता है, T2 का सेपरेट अपना प्राइवेट एग्जीक्यूशन का एरिया होता है. ओके, अब सेकंड बात एक याद रखो, T1 को T2 क्या कर रहा है ये पता नहीं और T2 को T1 क्या कर रहा है ये पता नहीं. ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से याद रखो कि T1 को सिर्फ क्या पता है, T1 एंड हार्ड डिस्क ओनली कैन कम्युनिकेट, इन द सेम वे T2 एंड हार्ड डिस्क कैन ओनली कम्युनिकेट. T1 T2 का कोई रिलेशन नहीं है, T1 को कुछ नहीं पता T2 क्या कर रहा है, T2 डोंट नो व्हाट T1 इज डूइंग. ओके, अब हमको पता है क्या कि दूसरे क्लास में कौन सा लेक्चर चालू है, कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर चालू है, नहीं हमको नहीं पता, हमको हमारे क्लास का पता है. ओके, इन द सेम वे मींस कम्युनिकेशन किस में रहेगा, T1 एंड हार्ड डिस्क. T2 का कम्युनिकेशन किसके साथ रहेगा, सिर्फ हार्ड डिस्क के साथ, और T1 का भी कम्युनिकेशन किसके साथ रहेगा, सिर्फ हार्ड डिस्क के साथ. ये रूल आपको याद रखना है. ओके, नाउ सी हियर, इसके हिसाब से हमको कैलकुलेशंस करना है. ओके, सो नाउ सी हियर hard disk. So first of all, in the hard disk, value of A and B are initial values of A and B are 1000 and 2000. Initial values of A and B are 1000 and 2000. आप एक काम कर लो, अभी इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो. मैं आज शाम तक मोस्टली ना ये पूरा चैप्टर ही अपलोड कर दूंगी, मींस आज जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ सकते हो. ये चैप्टर ऐसा है कि तभी ये समझ में आता है. ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, शेड्यूल 1, और उसके बाद ये पूरा तो नहीं आएगा, इसका ले लो. इसके बाद ये ले लो, ये आ जाएगा इतना पूरा एक इसमें, नो प्रॉब्लम. ठीक है, वो पहला वाला निकाल देना, ये ले लो. ठीक है, ओके, मींस आपको घर पे भी पढ़ना है. So now serious, in the hard disk original values of A is 1000 and original value of B is 2000. Okay, now T1 की इंस्ट्रक्शन अब याद रखो, रीड A equal to A minus 50, राइट A. इतना आप तीन पहले याद रखो. Okay, so what T1 will do, read A. So what value it will read from hard disk, A equal to 1000. हार्ड डिस्क से वो कौन सी वैल्यू रीड करेगा, 1000. Then A equal to A minus 50. So 1000 minus 50 it becomes 950. And write A. Write A means हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे. अंडरलाइन किया है मींस वो राइट किया है. So now here A value of A gets updated, 1000 निकल जाएगी और वहां पे 950 आएगी.
ओके, अब यहाँ पे कैसे मैंने ऑलरेडी कट किया है क्योंकि वो पूरा फाइनल ये है, तो अब यहाँ पे तो मैं ये नहीं कर सकती, आप समझ लो थोड़ा। ओके, कि 950 राइट कर रहे हैं हम 950, तो 1000 निकल जाएगी, कट हो जाएगी, मीन्स वहां पे रहेगी नहीं, एक ही वैल्यू रहेगी ए में, तो दिस वैल्यू गेट्स डिलीटेड एंड 950 गेट्स अपडेटेड देयर। ओके, हाँ, तो मीन्स अब ए की वैल्यू कौन सी है, 950। देन बी का इंस्ट्रक्शन क्या है, रीड बी, बी इक्वल टू बी प्लस 50, राइट बी। Okay, so now T1 will read the value of B from hard disk. The value of B from the hard disk is 2000. Okay, 2000. Okay, now then B plus 50 means 2050, and this value gets written to the hard disk. Okay, so B की क्या होगी, 2000 value gets deleted and their 2050 value will gets updated. Means अब A की value है 950 और B की value है 2050 in the hard disk. Okay. Now T1 is completed, T1 is completed, और T2 will start. T2 की instructions याद रखो यहाँ तक, read A, T equal to A into 0.1, A equal to A minus T, write A. Now what T2 will do? T2 will read the value from the hard disk. T2 will read the value from the hard disk. So from hard disk, T2 will get the value as 950. Okay, so T2 will read the value of A is equal to 950 from the hard disk. Now T equal to 950 into 0.1, because A into 0.1, okay, because it is A into 0.1, so it is 950 into 0.1, that is equal to 95. Okay, then यहाँ पे क्या है, माइनस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, A इक्वल टू, नेक्स्ट हमारा क्या है, A minus T. Okay, so 950 minus 95, 950 minus ये 95, it becomes 855 and it is written, write A is there. Okay, for our understanding we are underline it. Okay, हम हमारे खुद के इसके लिए underline करेंगे, 855 right हो गया. So now the value of A gets updated as 855. 950 चला जाएगा, 855 आएगा. Okay, now for B, read B. B equal to B plus T, write B. So now it will read the value of B as 2050 because in the hard disk it is 2050. Okay, now B equal to B plus T, the value of T is 95. So B equal to this plus 95 is equal to 2145. Again it gets written into the hard disk. So यहाँ पे hard disk में जाएगी 2145. Okay, so now what we have to do, we have to find out whether the given transaction is working correct or not. Okay, so हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओरिजिनल A प्लस B कितना था, 1000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 3000, एंड फाइनल A प्लस B कितना है, फाइनल वैल्यू ऑफ A इज 855 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ B इज 2145. सो अगेन वी आर गेटिंग द 3000 result. So as original A plus B is equal to final A plus B, that is 3000 is equal to 3000. So the given schedule is correct. Given schedule means this one. So it will give you the correct result. Okay. लेकिन और एक बात मैं आपको बता दूं, सीरियल शेड्यूल इज ऑलवेज करेक्ट. सीरियल शेड्यूल हमेशा करेक्ट ही आता है. प्रॉब्लम कहाँ पे रहेगा, कंकरेंट में रहेगा. बट फिर भी हमको देखना है कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट होती है एंड क्या होता है. ओके, सो आर यू गेटिंग, और आई हैव टू एक्सप्लेन वंस अगेन टू हाउ टू पुट द वैल्यूज. समझ में आए सबको? एक बार और देखना है क्या कि वैल्यूज कैसे पुट अप की, क्योंकि लास्ट के एक दो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैलकुलेट करो. समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है वैल्यू कैसे पुट अप की तो बोलो, आई विल रिपीट इट. मैम एक बार और बताओ ना. हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ. See here, ये ट्रांजैक्शन आप याद रखो, इंस्ट्रक्शंस से ऑटो रिव्यू. हम रीड क्या कर रहे हैं, रीड A इक्वल टू A माइनस 50 राइट. पहले ये तीन इंस्ट्रक्शंस याद रखो. ओके, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं. ओके, सो हार्ड डिस्क में, इन द हार्ड डिस्क वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 1000 एंड वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 2000 ओरिजिनली. ओके, T1 will contact with the hard disk only and T2 also will contact with the hard disk only. Okay, अब T1 का क्या है,
read A equal to A minus 50, write it. Okay. Ma'am, Hello. What happened? ma'am, quit हो रही है मैम. काय नाही होते? मैम मंजू जॉईन होती है तिला. अच्छा, अजून तर नाही होतीये. तिला सांग व्हायला पटकन. मंजू मंजू जॉईन होते मंजू. हा झाले, आता 2 स्टुडंट्स झाले जॉईन. ओके. Okay, so see here. Again, I'll repeat. See here, I'm going to repeat this. These are the transactions T1, T2. First of all, read these instructions. Remember these instructions. Read A